آپ جو حکم دیں مجھے میں حاضر ہوں. میں کون ہوتا ہوں حکم دینے والا؟ حکم تو بس اسی ایک ذات کا ہے جو اس دارالعمل کا مالک ہے. اپنے اس دنیا سے نکل، ذرا باہر جھانک، دیکھ کیا ہو رہا ہے. لوگ غلام ہیں، غلام بنائے جا رہے ہیں. مولا کائنات نے تو انسان کو انسان کی غلامی سے نجات دی ہے. دیکھو تو صحیح دنیا میں کیا ہو رہا ہے. انہوں نے بڑی نرمی سے کہا، جی آپ کا حکم. میں کافی حد تک ان کی بات سمجھ گیا تھا. تمہیں ایک بات سمجھائی تھی نا؟ انہوں نے کہا. پھر لمحہ بھر رک کر بولے، قلندر وہ ہوتا ہے جو شکر گزاری کے اس اعلیٰ مقام تک جا پہنچتا ہے جہاں رب تعالیٰ بھی اس کی خواہش کو رد نہیں کرتا. قلندر ہونا کوئی تصوف کا مقام نہیں، ایک طرز زندگی کا نام ہے. اگر کسی نے قلندر کی طرز زندگی کو مثال کے طور پر لینا ہو تو وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ذات لے سکتا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی قلندر اعظم ہیں. جی مجھے یہ سبق یاد ہے. میں نے دھیمی سی آواز میں کہا، قلندر وہ ہوتا ہے جس کا بھروسہ فقط اللہ کی ذات پر ہوتا ہے. اللہ کے بھروسے پر اس کے جو جی میں آئے وہ کر گزرتا ہے، کیونکہ اس کے لیے اللہ ہی کی ذات کافی ہوتی ہے. وہ قلندر لاہوری کا ایک شعر ہے نا کہ قلندر جز 2 حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا. فقہ شہر کاروں ہے لغت ہائے حجازی کا، اس پر سوچ اور سن. قلندر کے لیے سکون محال ہوتا ہے. انہوں نے اتنا کہا اور مسافر شاہ کے تھڑے پر روشنی معدوم ہوتے ہی ختم ہو گئی. وہاں چراغ کی روشنی رہ گئی تھی. میں کچھ لمحے یوں ہی ساکت کھڑا رہا، پھر ویسے ہی تھڑے پر بیٹھ گیا. میرے اندر شدت جذبات کا دریا موجزن تھا. خوشی کے سوتے پھوٹ رہے تھے. میری سوچ کی رو اس شعر کی جانب ہوگی جس میں قلندر لاہوری یہ کہتے ہیں کہ قلندر اور درویش کے پاس سوائے لا الہ کے اور کچھ نہیں ہوتا، جبکہ فقی شہر زبان اور بیان کے بلبوتے پر الفاظ کا سحر طاری کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. وہ اپنے بیان میں انتہائی ثقیل اور ایسے لفظوں کا استعمال بھی کرتا ہے جو عام عوام کے فہیم و عقل سے والا تر ہوتا ہے. اس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ سننے والا ان کی ابہام زدہ تقریروں سے مروب ہو جائے. دوسرے لفظوں میں علامہ یہی فرمانا چاہتے ہیں کہ علم کا روب جمانا اور علم بانٹنے میں فرق ہے. محض روب جمانے والا علم کیا دیتا ہے قوم کو، اور علم بانٹنے سے قوم کو کیا ملتا ہے؟ وقت نے یہ ثابت کیا ہے کہ جنہوں نے قوم پر اپنا فلسفہ ٹھونسا، اپنے خاص افکار کا پرچار کیا اور جبر میں انسانوں کو ذہنی غلام بنانا چاہا، علمی گفتگو کی بنیاد پر دنیا کو الجھنے دی، کسی خاص نظریہ کو عام کرنے کی کوشش کی، تو کیا ہوا؟ اس سے سوائے بدامنی، نفرت، قوم کی تقسیم در تقسیم، حلفشار اور دہشت گردی کے سوا کیا ہاتھ آیا؟ جبکہ علم بانٹنے والا مرد قلندر کائنات کے حقیقی درس کی جانب متعارف کراتے ہیں کہ جس کی بنیاد فکر لا الہ ہے، جس سے ثبات ہوتا ہے کہ اللہ کون ہے اور تحلیق آدمیت کا مقصد کیا ہے، کیونکہ یہی کامیاب اور فلاح کا راستہ ہے. لا الہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس میں نفی نہیں، اثبات ہے. یہی اثبات الا اللہ تک لے آتا ہے. تب یہ قلندر کی زندگی کا محور اور مرکز بن جاتا ہے. عشق وہ قوت ہے جو قلندر کو اس سارے حس و حاشاک جلا کر صرف لا شریک پر قائم ہو جاتا ہے. جس بارگاہ میں یہ سبق ملتا ہے وہیں سے فیض کو عام کرتا ہے. انسان اور انسانیت کا، رب اور انسان کے تعلق کا، پھر کوئی دوسرا فلسفہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. قلندر اس پر عمل کر کے دکھاتا ہے اور فقیہ شہر صرف لفظوں سے ابہام پیدا کرنے کا کام کرتا ہے. مولا علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ ان 3 ہستیوں میں سے ایک ہستی ہے جنہوں نے سب سے پہلے کعبہ میں اللہ کے حضور حاضر ہو کر رب لا شریک کی عبادت کی. ایک نبی رحمت کی اپنی ذات ام المومنین حتیجہ رضی اللہ عنہ اور علی مرتضی کی ذات آپ رضی اللہ عنہ بھی سلطان النصیر ہیں جنہوں نے ساری زندگی اپنی تلوار غیر اللہ کے لیے میان سے نہیں نکالی. رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ ہی کے لیے محبت اور اللہ ہی کے لیے دشمنی رکھنا. علی ابن ابی طالب وہ ہستی ہیں جنہوں نے سبھی قابل ذکر غزوات اور سرایا میں اپنی بہادری، شجاعت،
तहम्मुल व इस्तिकलाल और शराफत नफ्स से दुश्मनाने दीन और इंसानियत का सामना किया। इनकी शख्सियत के इन पहलू का इकरार खुद उनके दुश्मन भी करते थे। ग़ज़वा हंदक का एक बड़ा मशहूर वाक़या इनकी बेहतरीन मिसाल है। मुशरिकीन के जंगजू उमरो बिन अब्दू पर जब आप गालिब होकर उसके सीने पर सवार हो गए, अगले ही लम्हे उसका सर तन से जुदा कर देने वाले थे कि उसने अपने आप को चेहरे पर लबे दहन फेंक दिया। आप उसे छोड़कर फौरन अलग हो गए। यही वजह थी कि मामला ज़ातियात का हो गया था। उसे कत्ल करने के बजाय छोड़ा इसलिए कि कहीं रब ताला की रज़ा में अपनी ख्वाहिश नफ्स शामिल ना हो जाए। जब दौरान जंग वो दोबारा सामने आया तो आपने उसे कत्ल कर दिया। ज़माना जाहिलियत का रवाज था कि लाश की बेहुरमती करते थे, जिसकी बड़ी मिसाल हज़रत अमीर हमजा के बारे में हिंदा की है। लेकिन अली बिन अबी तालिब ने उमरो बिन अब्दू की कीमती जरा तक नहीं उतारी। उसकी बहन ने अपने भाई की लाश पर आकर कहा, मेरे भाई को मारने वाले अली बिन अबी तालिब जैसा शरीफ इंसान है जिसने लाश की तौहीन नहीं की। आपने दुश्मन के बच्चों और औरतों पर कभी हाथ नहीं उठाया, कभी माले गनीमत की तरफ रुख नहीं किया। ऐसा उस वक्त ही होता है जब ला इलाहा इस कदर रासिख हो जाता है कि बस वही होता है, वही होता है सब कुछ, बाकी कुछ नहीं रखा जाता। ताजदार कायनात का फरमान जारी हो जाता है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाजा है। फसाहत और बलागत बांदी बनकर रह जाती है। फिर अहले अरब पुकार उठते हैं कि कोई ऐसी मुश्किल नहीं है जिसका हल अबुल हसन यानी अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास ना हो। यही वो लम्हात थे जब मेरे अंदर से आवाज गूंजी, कलंदर का न जलाल अपना होता है और न ही जमाल, सब उसी का है। कलंदर के लिए सुकून महाल है। चल उठ, वक्त आ गया है किसी नई दुनिया को आबाद करें। यह हुक्म मेरे अंदर से ही गूंजा था, यूं जैसे किसी मजार के गुम्बद तले कोई आवाज लगा दे तो देर तक बाज़कश गूंजती रहती है। चंद लम्हों में बाज़कश थम गई। मैं बड़े मकान की अंदाज में अपने पांव पर खड़ा हो गया। मैं ये अच्छी तरह समझ भी रहा था और मुझे इल्म भी हो गया कि मेरा ये खड़ा होना किसी और की मर्जी से नहीं बल्कि मेरे अपने ही मन की सदा है। मैं उठा तो मुझे यूं लगा जैसे मैं पूरी कुव्वत से उठ गया हूं, जैसे किसी फायर की आवाज से परिंदे दरख्तों से उड़ते हैं और फिजाओं में फैल जाते हैं। मुझे लगा मैं भी इस पूरे माहौल में खो गया हूं। मुझे यूं महसूस कर रहा था कि जैसे मैं हवा में तैर रहा हूं। न वजूद का कोई वजन था और न ही मुझे कोई एहसास हो रहा था। मट्टी का बुत जैसे हवा में उछाल दिया गया हो। मुझे समझ का अंदाजा नहीं था कि मैं किस जानिब बढ़ रहा हूं। मैं कुछ देर तक थड़े पर खड़ा इन कैफियत का मुशाहिदा करता रहा, फिर थड़े से उतरा और एक तरफ चल पड़ा। उस वक्त मेरे सामने न कोई मंजिल थी, न किसी समत का तयन था। मैं एक कदम आगे रखता तो न जाने कितना सफर कर जाता। मेरे दाएं बाएं के मंजर कहीं गुम हो गए थे। हर जानिब अंधेरा था, कोई रास्ता मेरे सामने नहीं था। बस मैं चलता चला जा रहा था। मैं कितना चला इसका मुझे कोई अंदाजा ही नहीं था। फिर एकदम से सकूत छा गया। सुबह का वक्त था। नीलगो रोशनी फैली हुई थी। जब मंजर मेरे सामने वाज़िया होना शुरू हो गए, मैंने अपने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। वो सहराई इलाका था। वहां टीले नहीं थे बल्कि रेतली जमीन पर कहीं कहीं झाड़ियां उगी हुई थी। बिखरी हुई रेत में से झांकती हुई कहीं कहीं पक्की जमीन थी। वहां कभी बड़ा सहरा रहा था, लेकिन वक्त के साथ साथ तो सहरा भी बदल जाते हैं। सामने एक छोटी सी बस्ती नजर आ रही थी। कच्चे पक्के झोंपड़ी नुमा छप्पर से बने घर थे। मैं बस्ती से काफी दूर पुख्तर जमीन पर बैठा था। मुझसे थोड़े फासले पर एक झुंड का दरख्त था। वो इतना घना नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि उसके साए में जा बैठा जा सकता था। कई घरों में से धुआं उठ रहा था। तभी मुझे भूख का शदीद एहसास हुआ। मैं वहीं बैठा रहा। मेरे अंदर की कैफियत को समझने में महव हो गया था। मेरी हालत यूं हो गई थी जिसे पता नहीं कितना सफर तय करके आया हूं। मैं वहीं लेट गया और आंखें बंद कर ली। एक जहान था जो मेरे सामने जाहिर हो गया था। मेरे सामने एक मुहीब सहरा था, सुनहरा सहरा जिसके वसत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। सहरा पर सकूत तारी था, एक पुरहोल सन्नाटा
जैसे कोई मंजर दीवार पर चस्पा कर दिया गया हो। मैंने गौर किया तो शाम का मंजर था। अचानक इस मंजर में कूंजों की तेज आवाज तैरने लगी। कूंजें कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मैं इन आवाजों को समझने की कोशिश में था कि बाएं जानब से एक सुर्ख रंग का बगोला उठा। कूंजें इसमें फड़फड़ा रही थी। मुझे तो वो एक स्याह नुक्ते की तरह दिखाई दे रही थी, लेकिन समझ ऐसे आ रहा था जैसे वो कूंजें इस बगोले में कैद हैं, बावजूद कोशिश के निकल नहीं पा रही। वो बगोला किसी बदमस्त हाथी की मानित मेरी जानब आ रहा था। मुझे लगा कि जैसे वो भी मुझे अपनी लपेट में लेकर उड़ जाएगा। मैं इसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। वो लम्हा बलम्हा मेरे करीब आता गया। नीज हवा मेरे साथ टकराई और फिर वो बगोला गायब हो गया। मुझे यूं लगा जैसे कोई पुकार रहा हो। मैंने आंखें खोली तो मुझ पर एक मुकामी नौजवान झुका हुआ था। उसने बड़बड़ाते हुए मुकामी जुबान में कहा, नहीं, अभी जिंदा है, पूछ इससे कौन है। एक निस्वानी आवाज उभरी। मैंने आंखें खोलकर देखा। थोड़े फासले पर एक नौजवान खड़ा था। उसके साथ ही एक मुकामी नौजवान मकामी लड़की खड़ी थी। उनके हाथों में लाठियां थी। उनके पीछे काफी सारी भेड़ बकरियां, गाय और चंद ऊंट थे। मैं पहचान गया कि वो चरवाहे हैं। बाबा, कौन हो तुम? उस नौजवान ने पूछा। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मैं उसे क्या बताता कि मैं कौन हूं। अगर वो मेरे इलाके से होता तो मुझे लाजमन पहचान जाता। किसी दूसरे इलाके में हूं तो मैं जो कोई भी था, इससे उन्हें क्या। मैं खामोश रहा तो उसने फिर पूछा। तब मैंने कोई जवाब नहीं दिया, यूं ही खामोश रहा। तभी वो नौजवान लड़की बढ़ी। भूख लगी है, कुछ खाओगे? मैंने सर हिला दिया। ओह, उस नौजवान ने तासुब से कहा। नौजवान लड़की ने भी लाठी के साथ बंधी हुई पोटली खोली और मेरे सामने रख दी। तंदूरी रोटी के साथ अचार, गुड़ और प्याज था। जब तक मैंने रोटी की तरफ हाथ बढ़ाया, तब तक नौजवान अपनी कमर पर धरी सुराही उतार ली। एक प्याला मेरे सामने रख कर भर दिया। कमाल की लज्जत थी इस खाने में। मुझे यूं लग रहा था जैसे ये मेरे लिए मनोसलवा उतरा था। मैं 2 रोटियों में से एक खा गया तो मेरी भूख खत्म हो गई। उन्होंने पोटली समेट कर बांध ली। फिर मजीद कोई बात किए बिना यूं अपना रेवड़ हांग कर चल दिए जैसे मुझे जानते ही ना हो। मुझे वहीं बैठे शाम हो गई। मुझ पर वो लज्जत आ गई कैफियत वैसे ही तारी रही। मैंने देखा वही नौजवान लड़की और लड़का अपना रेवड़ लेकर मेरे करीब से गुजरे। उन्होंने मुझे देखा लेकिन कोई बात नहीं की और आगे बढ़ गए। उस वक्त सूरज डूब रहा था जब 2-3 लोग उसी नौजवान के साथ वहीं आ गए। वो मेरे करीब आकर बैठ गए। उनके हाथ में चंगेर थी जिसमें रोटियां धरी हुई थी। एक बड़े सारे बर्तन में दूध था। उन्होंने ये सब मेरे सामने रखा और जरा सा दूर होकर बैठे रहे। मैं मन ही मन में मुस्कुरा दिया। वो ना जाने मुझे क्या समझ रहे थे। मैंने इससे भी कोई बात नहीं की। वो मेरे सामने खाना रखकर खामोशी से एक जानब होकर बैठ गए थे। बिलाशबा वो इस इंतजार में थे कि मैं उनका लाया हुआ खाना खाऊं। मुझे भूख ही नहीं थी। वो काफी देर इंतजार करने के बाद ये सब कुछ वैसे ही रख कर चले गए। मेरा कुछ भी खाने को मन नहीं चाहता। मुझे नींद आ गई। सुबह जिस वक्त मेरी आंख खुली तो चंद लोग मेरे पास बैठे हुए थे। उनमें रात वाले लोग भी थे। उनके पास शायद ताजा खाना था। उन्होंने वो मेरे पास रखा। वो रात वाला सब उठा लिया हुआ था। उनकी आंखों में हैरत थी। शायद वो सोच रहे थे कि मैं बिना खाए पिए इतना वक्त गुजार लिया। वो कुछ देर बैठे रहे, फिर खुद ही उठकर चल दिए। मैं अपने साथ लाया हुआ ताजा खाना और वही छोड़ गए। मैंने उसमें से थोड़ा सा खाया और बाकी वहीं छोड़ दिया। कुछ देर के बाद वही नौजवान लड़का और लड़की अपना रेवड़ लेकर मेरे पास से गुजर गए। मैं वहीं बैठा रहा। दिन जब काफी चढ़ आया तो मेरी निगाह चंद कुत्तों पर पड़ी। वो यूं ही फिरते हुए, झाड़ियां सूंघते हुए मेरी तरफ बढ़ रहे थे, यहां तक कि वो मेरे करीब आ गए। शायद उन्हें खाने की खुशबू खींच लाई। मैंने एक रुमाल बिछाया और वो सारा खाना उनके सामने रख दिया। वो फौरन ही खा गए। बिलाशुबा वो भूखे थे। खा पी कर वो एक तरफ होकर लेट गए। झुंड के दरख्त तले मैं और वो कुत्ते पड़े थे। दोपहर के बाद वो कुत्ते उठकर चल दिए, लेकिन सरे शाम ही वो फिर वापस आ गए। शाम हो गई तो बस्ती में से कुछ लोग खाना लेकर आ गए। मैंने थोड़ा सा खाया और बाकी कुत्तों के सामने रख दिया।
3 दिन यूं ही गुजर गए। मैं वहीं बैठा अपनी इन कैफियत का मुशाहिदा करता रहा जो मुझ पर तारी हो चुकी थी। एक से एक नया जहान मुझ पर खुल रहा था। वो क्या था? उसमें क्या पैगाम था? मुझे इसकी बिल्कुल समझ नहीं थी। मैं बिल्कुल ऐसे ही देख रहा था जैसे कोई फिल्म देख ली जाए। इसमें किस शय का क्या मानी था, इसकी ना मुझे समझ थी और ना ही मैंने समझना चाहा था। बस मैं देख रहा था और दिखाने वाला दिखा रहा था। तीसरी शाम कई लोग आए और हर कोई खाना रखकर चला गया। मैंने खाया सो खाया, कुत्तों को डाला तो फिर भी खाना बच गया। मैंने वो सब समेट कर एक तरफ रख दिया। मैं काफी देर तक अंधेरे में यूं ही बैठा रहा, फिर पता नहीं किस वक्त सो गया। रात का न जाने कौन सा पहर था, जब कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ आवाजें ही आ रही थी। कुछ इंसानी आवाजें थी, जैसे वो इन कुत्तों को दुत्कार रहे हों। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था, मुझे वो सब आवाजें अपने करीब आते हुए महसूस होने लगी। यहां तक कि 4 लोगों का हयोला मुझे दिखाई दिया। उनमें से किसी ने छोटी सी टार्च की रोशनी मुझ पर डाली और बड़े रौब से पूछा, कौन हो तुम? उनका इतना ही कहना था कि कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। उनमें इतनी शिद्दत थी कि जैसे वो इन सबको खा ही जाएंगे। वो लोग इन कुत्तों से बचने की भरपूर कोशिश में लगे हुए थे। उनके दरमियान ये धमाचौकड़ी कुछ देर चलती रही। फिर किसी ने कहा, बाबा तुम जो भी हो इन कुत्तों को रोको। मैंने कुत्तों को शिशकारा तो यूं खामोशी छा गई जैसे वहां हू का आलम हो। वो चारों हयोले मेरे सामने बैठ के, उनके इर्द कुत्ते यूं बैठ गए जैसे उनकी निगरानी कर रहे हों। कुत्तों की चमकती हुई आंखें उन्हीं पर जमी हुई थी। अगर उन्होंने जरा सी भी हरकत की तो वो उन पर पल पड़ेंगे। बाबा बड़ी कोशिश की यहां से निकलने की, पिस्टल भी चलाया, लेकिन चला ही नहीं। एक आवाज सी उभरी, बाबा बड़ी कोशिश की यहां से निकलने की, पिस्टल भी चलाया इन पर, लेकिन चला ही नहीं। एक आवाज उभरी, सच्ची बात यह है कि हम चोर हैं, बड़ा सामान हाथ लगा है, करम करो बाबा, निकल जाने दो। दूसरा शख्स बोला। वो खुद ही कहे जा रहे थे, जबकि मैं खामोश बैठा रहा, किसी बात का जवाब ही नहीं दिया था। कितना वक्त गुजर गया, तभी एक आवाज गुबरी, कुछ खाने को है बाबा? उसके साथ ही टॉर्च रोशन हुई। मेरे करीब ही खाना पड़ा था। मैंने हल्का सा इशारा किया। एक बंदे ने आगे बढ़कर उठाया, फिर सभी खाने लगे। मैं वैसे ही लेटा रहा। वो खाना खा चुके तो रुमाल वगैरह लपेट कर एक तरफ रख दिया। फिर उठकर जैसे ही उन्हें सामान की तरफ हाथ बढ़ाया, कुत्ते उन पर टूट पड़े। वो पीछे हटकर आराम से बैठ गए तो कुत्ते भी एक तरफ हट गए। ये मेरे लिए एक अजीब ज़ाहरी मुशाहदा था। उन्होंने दोबारा कोशिश की, दोनों बार ही ऐसा हुआ। वो काफी देर बैठे रहे, फिर उठकर सामान लिए बगैर चल दिए। इस बार कुत्ते सुकून से बैठे रहे। कुछ देर बाद वो नजरों से ओझल हो गए। मैं भी आंखें बंद करके लेट गया। वो फट गई थी, रोशनी हो रही थी। मुझसे थोड़े फासले पर गठड़ियां पड़ी हुई थी। बिलाशुबा ये उन्हीं चोरों का लूटा हुआ माल था। न जाने उन्होंने किस घर को लूटा था। मैं ये सोच ही रहा था कि बस्ती की तरफ से काफी सारे लोग जत्थे की सूरत में अपनी तरफ आते हुए दिखाई दिए। उनके अंदाज से लग रहा था कि वो उन्हीं चोरों के ताक़ुब में निकले हैं। उनके साथ खोजी भी थे जो कदमों के सुराग पर यहां तक आन पहुंचे थे। क्योंकि उन्होंने सामान पड़ा हुआ देख लिया था, इसलिए तेजी से मेरी जानिब ही आने लगे थे। चंद मिनट वो मेरे पास आकर रुक गए। वो सब कभी मेरी तरफ और कभी सामान की जानिब देख रहे थे जिसके इर्द गिर्द कुत्ते बैठे हुए थे। तभी उनमें से एक उधेड़ उम्र बंदे ने सवाल किया, ओ साईं लोका, ये सामान इधर पड़ा है, किसने रखा है? ये यहाँ कौन रख के गया है? एक दूसरे बंदे पूछा। ये सामान यहाँ कैसे आया? तीसरे बंदे ने जानना चाहा। मैंने इनके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वो सभी मेरे जवाब का इंतजार करते रहे, यहाँ तक कि एक बंदे ने कहा, यार ये बोलता नहीं है, चंद दिन से यहाँ पड़ा है। मेरा नहीं हाल कि ये तुम्हारी किसी बात का जवाब देगा। यार फिर कैसे पता चलेगा कि वो चोर कौन थे? उसी उधेड़ उम्र बंदे ने कहा, देखो ये सामान यहाँ पड़ा हुआ मिल गया है, तू देख नहीं रहा? ये कुत्ते इस सामान के गिर्द किस तरह हिफाजत कर रहे हैं। ये जो बंदा वीराने में बैठा हुआ है, ये सब इसी की वजह से है। हैरियत इसी में है कि सामान लेकर वापस चले जाएं।
कोई सवाल जवाब ना करे। बात तो तुम्हारी ठीक है, उसी उधेड़ उमर ने सर हिलाते हुए कहा। ये बाबा ना होता तो ये सामान यहाँ ना मिलता, ज्यादा तफ्तीश मत कर। उसी शख्स ने समझा और फिर मेरी जानब देखकर बोला, साईं लोका सामान ले जाएं। मैंने सर का इशारा किया तो वो सामान उठाने के लिए बढ़े। करीब बैठे हुए कुत्ते पड़े हट गए। उन्होंने सामान उठाया और वापस चल दिए। मैंने जाता हुआ देखता रहा। इन सारे दिनों में वो पहला मौका था जब मैंने एक नई तरह की कैफियत महसूस की थी। चढ़ते हुए दिन के साथ मैं था और मुझसे थोड़े फासले पर बैठे हुए कुत्ते थे। ये सब कुछ क्या था? मुझे अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यकीन था कि कुछ न कुछ तो जरूर वाज़िह हो चुका होगा। नया पैराग्राफ। जसपाल सिंह के जहाज ने जैसे ही रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर की जमीन को छुआ, उसके अंदर बेचैनी भर गई। उसका मन चाह रहा था कि सारी रुकावटें दूर हो जाएं और वो फौरन रतनदीप सिंह जी की हवेली में पहुंच जाए। जहाज का इंतजार वानिता कुंवर कर रही थी। उसे इंतहाई जल्दी में कनाडा से भारत आना पड़ा। फिर भी उसे यहाँ तक पहुंचने में 3 दिन लग गए थे। जिस वक्त वो जहाज से निकल रहा था, उसने एक तवील सांस ली और खुद पर काबू पा लिया। वो नहीं चाहता था कि उसकी किसी हरकत या रवैये से किसी को शक पड़ जाए और यूं ही तफ्तीश के लिए उसे ठहरा लिया जाए। उसे हर हाल में जल्द अज जल्द हवेली पहुंचना था। एयरपोर्ट के तमाम मराहल से फरागत के बाद उसने अपना इकलौता बैग उठाया और शीशे का गेट पार करके सड़क पर आ गया। दिन काफी चढ़ा आया था। मौसम हासा खुशगवार हो रहा था। जल्द ही टैक्सी इसके पास आन रुकी। ड्राइवर सीट पर भूपिंदर सिंह बैठा यूं ही उसकी जानब देख रहा था जैसे कोई जान पहचान ही ना हो। चंद मिनट बाद जसपाल टैक्सी की पिछली नशिस्त पर बैग समेत बैठ गया तो भूपिंदर सिंह ने टैक्सी बढ़ा दी। वो एयरपोर्ट की हदूद से निकले तो जसपाल ने पूछा, कैसे हो भूपिंदर? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बहुत मजे हैं, उसने मशीनी अंदाज में बताया। ये सब एकदम से क्या हो गया है? मुझे यूं बुलाया गया? जसपाल ने उससे पूछा। मुझे तो कोई खैर खबर नहीं पहुंची, बस आज मुझे वानिता जी ने कोई 3 साल के बाद काम कहा है, वो भी आपको लाने के लिए। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। उसे तफसील से बताया तो जसपाल ने खुद को ढीला छोड़ दिया। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद उसे यूं ही गपशप के अंदाज में पूछा, इतना अरसा किसी से कोई राब्ता नहीं रहा? सबसे राब्ता है, बस आपसे ही नहीं रहा। बड़ा जबरदस्त काम शुरू किया है यहाँ अमृतसर में, गाड़ियों का शोरूम बनाया है। वानिता जी की मदद से ही अब सुकून है। उसे फिर तफसील से सारी बात कह दी। हाँ, वो तो मुझे पता है, सभी सेट हो गए हैं। जसपाल ने बाहर की तरफ देखते हुए कहा, मैं समझता हूँ आपने सेट किए हैं। ये कहकर उसने कहका लगा दिया, हाँ यार, सबके पास पैसा होगा तो ही सुकून में रहेंगे ना। जसपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, पैसा तो बहुत कमाया सबने, पूरे पंजाब में नेटवर्क बना दिया है वानिता जी ने। बड़े हौसले वाली हैं जी वो, भूपिंदर सिंह ने कहा तो जसपाल हंस दिया। पैसा तो बहुत कमाया सबने, पूरे पंजाब में नेटवर्क बना दिया है वानिता जी ने। बड़े हौसले वाली जी हैं जी वो, भूपिंदर सिंह ने कहा तो जसपाल हंस दिया। वो सब जानता था, उसी की वजह से सारे काम हो रहे थे। बस यूं ही उसके साथ गपशप कर रहा था। भूपिंदर सिंह ने टैक्सी हवेली के पोर्च में रोकी तो जसपाल सिंह ने सुकून का सांस लिया। वो जल्दी से बाहर निकला और बैग उठाए बिना अंदर चला गया। सामने ही गोल मेज पर वानिता कुंवर बैठी हुई थी। उसे देखते ही उठी और तीर की तरह उसके गले आने लगी। जसपाल सिंह उसके थरथराते हुए बदन से उसके जज्बात को समझ रहा था। चंद लम्हे बाद वो उससे अलग हुई और उसके चेहरे पर देखती चली गई। तभी जसपाल सिंह ने धीरे से पूछा, बन तो हैर तो है ना? है भी और नहीं भी। काम बहुत बड़ा पड़ गया है आओ बैठो बताती हूँ। ये कहते हुए उसकी निगाह भूपिंदर सिंह पर पड़ी। उसे बैग सोफे पर रख दिया। उसे देखकर वानिता ने कहा, अब जाओ, सबको राब्ते में करो, मुमकिन है जरूरत पड़ जाए। उसने यूं कहने पर जसपाल सिंह को लगा कि मामला काफी हद तक संजीदा है। वो उसे लेते हुए उसी कमरे में चले गए जहां जसपाल सिंह ठहरा करता था। बन तो यार, इतना सस्पेंस क्यों, बताती क्यों नहीं?
फ्रेश हो जाओ, अभी आती हूँ। ये कहकर वो मुड़ गई। जिस वक्त जसपाल फ्रेश होकर आया उस वक्त तक कमरे में खाना लग चुका था। वो एक कुर्सी पर बैठा ही था कि बानीता के साथ अनुजीत सिंह भी कमरे में दाखिल हुआ। ओए तुम इधर! जसपाल उसे देखकर चौंक कर कहा, फिर उसे गले लग गया। दोनों मिल चुके तो अनुजीत सिंह ने कहा, मैं तो 3 दिन से इधर हूँ। यार तुम लोग बताते क्यों नहीं, बात क्या है? जसपाल सिंह ने संजीदगी से पूछा। खाना खाओ, बताते हैं, बानीता कंवर ने सुकून से कहा और कुर्सी पर बैठकर प्लेट अपनी तरफ सरका ली। नचार वो भी बैठा तो अनुजीत भी बैठ गए। खाने के दौरान ही अनुजीत सिंह ने कहा, तकरीबन 2 हफ्ते पहले रात के वक्त कुछ लोग मेरे पास आए। मैं इन दिनों चंडीगढ़ में ही था। इन दिनों वहां असेंबली का इजलास चल रहा था। काफी देर यूं ही बातों के बाद उन्होंने अपना तारुफ करवाया कि वो रा के लोग हैं, मेरे बारे में सारी जानकारी रखते हैं वगैरह वगैरह। क्या चाहते हैं वो लोग? जसपाल ने कहा, वो ये चाहते हैं कि मैं खालिस्तान तहरीक के खिलाफ काम करूं, हर फोरम पर खालिस्तान की मुखालफत करूं। तुम्हारी जो कनाडा में खालिस्तान के बारे में कोशिशें हैं उनका हवाला दिया और ये भी चाहा कि मैं तुम्हें रोकूं, वरना वो किसी भी केस में मुझे अंदर डाल देंगे। अनुजीत ने तफसील बताई तो जसपाल ने मुंह बनाते हुए कहा, इतनी सी बात से डर गए हो? नहीं, मैं डरा नहीं, नाखौफजदा हुआ हूं। अगर ऐसा होता तो कनाडा चला जाता या कहीं भी भाग जाता। बात यह है कि वो लोग खालिस्तान तहरीक के लिए काम करने वाले आदमियों को खत्म कर देने के दर पे हो गए हैं, ताकि भारत से इस तहरीक का नामो निशान तक मिटा दिया जाए। अनुजीत सिंह ने तहम्मुल से बताया। ये बात उन लोगों ने बताई? जसपाल ने पूछा। नहीं, ये बात मेरे यहाँ के नेटवर्क ने बताई। वो सारा होमवर्क जो रा ने किया है वो हमारे हाथ लगा है। अब मैं नहीं जानता कि ये होमवर्क दुरुस्त है या गलत। ट्रैप करने को कहा है। क्या है? लेकिन जो कुछ भी ज़ेरे ज़मीन होने जा रहा है वो बहुत भयानक है सिख कौम के लिए। मैं तुम्हें दिखाऊं वो होमवर्क? तो अनुजीत तकरीर करता हुआ रूहान सा होता हुआ बता रहा था। जसपाल ने उसकी बात काटते हुए गुस्से में कहा, तो होता रहे, इस बेवकूफ कौम के साथ हमें क्या? जो कौम खुद अपना भला नहीं चाहती, हम ही क्यों उसके लिए कुर्बानियां देते चले जाएं? मुझे नहीं देखनी कोई रिपोर्ट। ये कौम गुलाम रहना पसंद करती है तो रहे गुलाम। हमने ठेका लिया हुआ है इनका। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? अनुजीत सिंह ने हैरत ज़दा होते हुए कहा। खाना खाओ, उसने लापरवाही से कहा और प्लेट में चावल डालने लगा। उसका अंदाज यही था जैसे उसे अनुजीत सिंह की ये बात बहुत बुरी लगी हो। बानीता ने भी चौंक कर उसकी जानिब देखा। उसकी आंखों में हैरत फैली हुई थी। अनुजीत कुछ लम्हे हैरत से उसकी तरफ देखता रहा, फिर धीमे से लहजे में बोला, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं समझ नहीं सका। यार, हमने अपने हिस्से का काम कर दिया है। बताओ क्या नहीं किया गया इस सिख को समझाने के लिए? अगर वो नहीं समझती तो अब हम क्या करें? उसने कहा और नैपकिन से अपना मुंह साफ करने लगा। तो बानीता कुंवर ने कहा, अवाम को नहीं पता कि इसके खिलाफ क्या होने जा रहा है। ये बात तो उन्हें बताना होगी। देखो, किसी भी तहरीक को चलाने वाले लोग इंतहाई मुखलिस होते हैं तो वो तहरीक चलती है। कौम वो तरक्की करती है जो अहलाकी तौर पर मजबूत हो, जिसे अपने कौम होने का एहसास हो। कभी कभी तो मुझे ये गुमान होता है कि वो सिख कौम रही ही नहीं जो गुरबों के सिंग हैं, शराब पानी की तरह बहा रहे हैं। अपनी ही बहन बेटी की इज्जत इनसे महफूज नहीं। नशे में सारी नौजवान नस्ल डूब रही है। सिख इतने करप्ट हो चुके हैं कि उनसे जो मर्जी करवा लिया जाए। वो अपनी कौम क्या, अपनी माँ बहन और बेटी भी बेच खाएं। एक खालसा की पहचान ही यही है कि वो सच बोलता है। लेकिन अब क्या है, ये कौम खत्म हो रही है। जसपाल ने इंतहाई दुख से कहा, इनके खिलाफ ये साजिश है। इस कौम के नौजवानों को खत्म किया जा रहा है एक सोचे समझे प्लान के तहत। बानीता कुंवर ने इंतहाई दुख से कहा, यह मजीद बुरी बात है। जो बंदा अपने खिलाफ होने वाली साजिश को नहीं समझ सकता, साजिश का पता होने के बावजूद जो कौम अपनी कुर्बानी देती चली जाए, तो ये अहमकाना अमल है। यही बात अगर तुम लोग मुझे कनाडा में बता देते तो मैं आता ही नहीं। अब मुझे सिखों से कोई हमदर्दी नहीं रही। जसपाल सिंह ने उन दोनों की तरफ देखकर उन्हें समझाते हुए कहा। तो बानीता कंवर ने उसकी जानिब हैरत और दुख से देखा। चंद लम्हे यूं ही देखती रही, जैसे उसके मुंह से ऐसी किसी बात की तवक्का न कर रही हो। फिर इंतहाई गुस्से में बोली, ठीक है,
سمجھو ہم نے کوئی بات کی ہی نہیں. ہم سے جو ہو سکا ہم کریں گے. تم اگر واپس جانا چاہتے ہو تو ابھی چلے جاؤ. مجھے اگر پھپھو سے نہ ملنا ہوتا تو میں ابھی کے ابھی یہاں سے چلے جاتا. اس بار جسپال نے انتہائی غصے میں کہا، جس پر ان پہ خاموشی چھا گئی. ذرا سی دیر کی خاموشی کے بعد وانیتا نے اجنبی لہجے میں کہا، جیسے تمہاری مرضی. میں اب دیکھ لوں گی یہ سب. کب جا رہے ہو تم؟ میں ابھی نکل رہا ہوں، جسپال سنگھ نے کہا اور اٹھ گیا. وہ پورچ تک اکیلا ہی آیا تھا. بھوپندر سنگھ وہاں کھڑا تھا، لیکن اس کی کار کی جگہ ایک 4 وہیل وہاں تھی. جسپال نے اس کی طرف دیکھا تو وہ آگے بڑھتے ہوئے بولا، کہیں جانا ہے آپ نے؟ اوگی پنڈ. اور کہاں جانا ہے؟ جسپال نے کہا، تو پھر چلیں. اس نے کہا، تم چلو گے میرے ساتھ؟ اس نے جواب دینے کے بعد پوچھا. جی میں چلتا ہوں، اب آپ کے ساتھ میں ہی رہوں گا. اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو جسپال نے کوئی جواب نہیں دیا اور 4 وہیل کی فرنٹ سیٹ پر جا بیٹھا. اتنی دیر میں بھوپندر سنگھ بھی ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا. اگلے چند لمحوں میں وہ حویلی سے نکلتے چلے گئے. اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا.